is irrespective wherever you are on this planet, जहाँ खड़ा होगा वहाँ पैसा मिलेगा. That is storytelling. आप दुनिया में जहाँ खड़े होंगे ना, people will be interested to pay and listen to you. इलेक्शन रैली होता है, लोगों को बुलाया जाता है, ट्रक में भर के आके बैठो. ये सुना है पेड 500 रुपीज़. जिस कंट्री में लोगों को पैसा मिलता है सुनने के लिए, वहाँ पर लोग पैसा दें सुनने के लिए. That is very challenging. Yes or no? I hope you are able to understand what this subject is all about. When you talk about art of storytelling, storytelling हमसे art क्यों कहते हैं पता है? Everybody can have their own way. There is no defined rule. It is not science. That is the reason why we don't call it as science of storytelling. We call it as art of storytelling. क्योंकि science में defined है. H2O मतलब water. Yes or no? H2O2 will never become water. So when things are not defined, that becomes an art. Art can have a different way altogether. So the way I am sharing with you, आपका तरीका अलग हो सकता है. But at the end of the day, what is important is it creating the impact? अगर impact होगा तो okay है, नहीं होगा तो दिक्कत है. It doesn't matter whether you are तेंदुलकर, विराट कोहली, सहवाग और राहुल द्रविड़. रन बन रहा है कि नहीं बन रहा है. The batting style can change. At the end of the day, the score matters. Yes or no? So my request to everyone is, whatever I am sharing, it is my perspective. This is how I look at this scenario. I'll train you how you can become a better storyteller, but you can also have your own ideas. मैं आपको कुछ दूंगा खाने को, आप और कुछ खाना ऐड कीजिए. Let us create a menu out of this. Right? Are we good to go? Yes. अब when we talk about storytelling, storytelling का मतलब क्या है? What is the meaning of storytelling? कहानी सुनाना. Yes or no? सुनाने का मतलब होता है communication. Communication is what? Exchanging of ideas and thought and communicating about something. That's called communication. And storytelling is what? Storytelling is communicating with the help of an example. That is what storytelling is. Again I repeat. What is storytelling? When you communicate things with the help of an example, that is storytelling. Yani the foundation is what? The foundation is communication. And communication, अगर आपको सीखना है, communication has three parts. Generally, people believe that communication is about talking and speaking. The answer is no. Communication has three parts. The first part of communication is listening. What is the first part of communication? Listening. The second part of communication is showing. And the third part of communication is speaking. हमको किसी ने बता दिया कि communication का मतलब है तो बोलना. Answer is no. That is the last part of communication. The first part of communication is listening. आज के डेट में सब परेशान इसी के कारण है. माँ बाप को क्या परेशानी है? बच्चा मेरा बात सुनता नहीं है. प्रोफेसर लोग को परेशानी है, चेयरमैन हमारा बात. What I am saying is, I'm just giving you an example. हर आदमी, एक एम्प्लॉयर को क्या परेशानी है? मेरा स्टाफ, मेरा बॉस मेरा बात सुनता नहीं है. मैं कह रहा हूँ सर, इंडिया में हर आदमी irrespective of the profile, जो घर पे लेडी है ना, उनकी जो मेड आती है ना, वो लेडी को भी परेशानी है, मेड मेरा बात सुनती नहीं है. The problem is not with communication, the problem is with listening. मेरा एक दोस्त कहता है, भैया अगर मैंने बचपन में अपने पापा की बात सुन लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता. तो मैंने उसको पूछा कि पापा क्या बोलते थे? बोलता ये तो बोल रहा हूँ सुना नहीं. वो कह रहा है ये तो बोल रहा हूँ मैंने सुना नहीं. That is where the problem is. What I have understood from my experience of last 15 years working in different departments is, you need to be a master of listening if you want to communicate well, because your input will decide your output. आप बैग नीचे रख दो, otherwise will not be comforting. Please, okay. आपका input decide करेगा आपका output को. Example, मैम आप गर्मी के मौसम में गार्डन में खड़े हैं और एक सामने में मैंगो का ट्री है, आपको मन क्या करेगा? In the month of May, there are lots of mangoes on a mango tree. आप गार्डन में खड़े हो, आपको मन क्या करेगा? आम खाने का मन करेगा. Yes or no? Agree? देखा किसने? आंखों ने. देखा किसने? आंखों ने. तोड़ने जाएगा कौन? पैर. यानी जिसने देखा वो गया नहीं. गया कौन? आपका पैर. तोड़ेगा कौन? हाथ. यानी जो गया उसने तोड़ा नहीं. तोड़ा किसने? तोड़ा किसने? आपके हाथ ने. खाएगा कौन? मुंह. जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं. खाया किसने? मुंह ने. और जो गार्डन का ओनर है आपको देख लिया और पीठ में जोर से डंडा मारा, आंसू कहाँ से निकलेगा? देखा किसने था? योर इनपुट विल डिसाइड योर
समझ में आया कि नहीं आया? योर इनपुट विल डिसाइड योर आउटपुट। जिसने देखा वहीं से आंसर निकला। तो दैट मीन्स इफ योर इनपुट इज नॉट गुड, योर आउटपुट विल नेवर बी गुड। इसका मतलब है कि स्टोरी टेलिंग के पहले सुन तो लो ना। अगर हम बोलने के पहले सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? ये सुनो, क्योंकि रूल ये कहता है स्टोरी टेलिंग का कि जब आपके होठ खुले, लोगों के कान खुलने चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ स्टोरी टेलर। आपका होठ खुलेगा तो लोगों का क्या खुलना चाहिए? कान। इसीलिए भगवान हमेशा कहता है पहले सुनो, इसलिए 2 कान दिया, 1 मुंह दिया है। अगर भगवान कहते हैं ना पहले बोलो तो 2 मुंह देते, 1 कान देते। ऊपर वाले का कैलकुलेशन कितना परफेक्ट है, बोलता है 2 बार सुन और 1 बार बोल। कम्युनिकेशन इज दैट। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट कि मैं आया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत जन को कम्युनिकेशन, कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर, एनी रफ पेपर, रफ पेपर इज देयर राइट। सबको कम्युनिकेशन क्या सिखाया गया पता है? स्टेज में जाके फाड़ देने का है। मैंने फाड़ दिया है सर, बोल देते पहले छोटा सा एक ये सब नो ये लिखने के लिए रख देते। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज सर, कम्युनिकेशन हमको सिखाया गया कि स्टेज पे आके फाड़ देने का है। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। फाड़ तो मैंने दिया पेपर। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अबाउट द कनेक्ट दैट यू बिल्ड विद द ऑडियंस। स्टोरी टेलिंग इज व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी। आपके जो बात करने में क्या वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, क्या वो प्योरिटी है कि नहीं है। लोग आपके आंख से कम्युनिकेट कर लेंगे कि तू सच बोल रहा है या तू कहानी बना रहा है, वेदर यू आर नेचुरल और यू आर आर्टिफिशियल। यस और नो? सर, इस इंस्टीट्यूट में जितने आपके फ्रेंड है, प्रोफेसर है, फैकल्टी है, हर प्रोफेसर को दूसरे प्रोफेसर के बारे में पता है सब कुछ, हर स्टूडेंट को दूसरे के बारे में पता है। यस और नो? Everyone knows what you stand for. Sir, आपका इनका एनालिसिस, people have a perception about you, whether they have met with you or not. Say for example, lion. When I talk about lion, सबसे पहले क्या इमेज आता है आपके माइंड में? What is the first thing that comes to your mind when you hear the word lion? King of the jungle or the roar? Yes or no? When I talk about giraffe, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? Tall. When I talk about elephant? Huge, gigantic. Yes or no? And when I talk about fox? क्लेवर। यस और नो? क्लेवर, चालाक, नौकरी चालाक होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप में से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में फॉक्स से मुलाकात की है? हैव यू एवर मेट विद फॉक्स? नो? तो आपको कैसे पता चला कि वो चालाक होती है? तो आपको कैसे पता चला अगर आपने फॉक्स से मुलाकात ही नहीं किया है? हाउ हैव यू केम टू नो? स्टोरी में सुना है या किसी ने बोला है कि लोमड़ी चालाक होती है। इवन दो यू हैव नॉट मेट विद द पर्सन, just because there was a perception about it and you carry the same perception. Yes or no? It doesn't matter whether the people have met with you or not, there will be a perception that will be created, and that perception has to be very strong so that people will be willing to listen to you. स्टोरी टेलिंग के पहले हमको समझना है कि क्या लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे को सुनने के लिए। स्टोरी कैन कम सेकंड। आई एम जस्ट गिविंग यू फाउंडेशन। पीपल विल डायरेक्टली जंप इनटू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज द एंड पार्ट. The first part is, do we have something authentic to share? Do we have something which is of quality? Do we have something which is of utmost importance? If that is not there, people will not listen to you. And this is what is happening in the world of business. If you talk about the best businessmen in the on this planet Earth, अब देखो entire जितने भी है ना 99% of them will be a great storyteller. You start with Steve Jobs. He was a wonderful storyteller. उनको पता है, जैक मा की बात कीजिए, अली बाबा, wonderful storyteller. He knows how to connect with the audience. And if you can connect with the audience, कहाँ पर आप पहुँच सकते हो पता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में राज उसने नहीं किया जिसके पास पैसा है। दुनिया में राज हमेशा उसने किया जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। When talk about Nelson Mandela, Abraham Lincoln, you talk about anyone, Mahavira, Buddha, Gandhi, it was people with great communication skill. When I talk about Bhagavad Gita, अगर हम भगवद गीता की बात करें, that is what, that are the words of Lord Krishna. Yes or no? When I talk about Quran, when Guru Granth, वो सब हैं। और सब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, सर ये हमारा मैथ्स का टीचर है, ये हमारा साइंस का टीचर है, ये हमारा इंग्लिश का टीचर है। तो मैंने बोला बच्चों का टीचर कहाँ है? सर यू कैन बी एन एक्सपर्ट ऑफ मैथ बट यू कैन नॉट बी अ टीचर। आपको क्या मैथ्स को पढ़ाना है? आंसर इज नो। आपको पढ़ाना किसको है? बच्चों को। मैडम 2 + 2 4 होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अगर आप बच्चों को कह रहे हैं 2 + 2 4 होता है, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ इन्फॉर्मर।
There is the information you have said, that means you are an informer, you are not a teacher then. इसका मतलब ये है कि 2 + 2 4 तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, उनको भी पता है. How do we explain 2 + 2 is 4? That is important. That is what teaching is. Yes or no? मैं आके क्लास में बोला 2 + 2 4 होता है. ये तो बुक में लिखा है, 35 रुपीज़ का बुक में लिखा है 2 + 2 4 होता है. टीचर ने भी बोला 2 + 2 4 होता है. तो फ़र्क क्या पड़ गया? आपको कुछ फ़र्क पड़ा? आपने बोला सर वो तो बुक में लिखा, मैं पढ़ लेगा 2 + 2 4 होता है. बट व्हेन आई टेक एन एग्जांपल कि ये दो दोस्त थे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक तालाब में 4 मछली था, उसमें से 2 मछली मर गया, कितना बचा? 4 ही बचा ना. वो कि कहाँ जाएंगे? बता दो 4 ही. अब मैंने ये जो बोला ना, यहाँ पर ऑडियंस कनेक्ट होती है. यस, इसने एग्जांपल दिया कि 2 मर गया, यानी 4 तो रहे, यानी 2 + 2 ऐड करेंगे तो हमेशा 4. यानी टीचर वो होता है जो उस तरीके से उसको समझा देता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट? लिसनिंग. और लिसनिंग जो होती है वो भगवान की क्वालिटी होती है. आप जब मंदिर में जाते हो सर, बोलता कौन है, सुनता कौन है? When you go to a temple, एक मूर्ति है सामने में, सर बोलता कौन है, सुनता कौन है? बोलता हम है, सुनता कौन है? Yes or no? What I am saying is, सुनते भगवान है. हमको assumption है कि मैं जिस मंदिर मांग रहा हूँ या जो कह रहा हूँ, सुन कौन रहा है? भगवान. यानी सुनना इज अ स्किल ऑफ गॉड. सुनने की आदत डाल दीजिए सर, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज वेयर यू बिकम अ स्टोरी टेलर. अब लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी बिकम अ स्टोरी टेलर. लिसनिंग में क्या सुने वो भी इंपॉर्टेंट है. सर आपने तो सुना दिया कि सुनना चाहिए, ये तो समझ में आ गया. क्या सुनना चाहिए, दैट इज द फाउंडेशन. आई गिव यू एन एग्जांपल कि सुनना क्या चाहिए. देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड जस्ट, राइट इट डाउन, JUST. There is a theory called JUST. That's a formula to remember how can we become a great storyteller so that we can connect with the larger audience. सर जब 10,000 लोग खड़े रहेंगे ऑडिटोरियम में, सपोज सर आप एक कंपनी के CEO हो, 10,000 लोग खड़े हैं ऑडिटोरियम में, तो आप हमेशा प्रोडक्ट की बात नहीं करोगे ना. टू कनेक्ट विद देम यू विल हैव मल्टीपल एग्जांपल, इनसाइड एंड स्टोरी. आप बोलोगे दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय टेक्नोलॉजी, सब सो जाएंगे. Be very honest, 90% will sleep because उसको फर्क ही नहीं पड़ता. He is not from a tech background, but story is something irrespective of your background. Whether you are from technology, IT, finance, art, commerce, it doesn't matter. People can still relate with you. So the just formula is JUST. J stand for jokes. J stand for jokes. Sir, the comedian are the one who have the most intellectual brain on this planet. It is not the scientist. It is the comedian. आपको लग रहा है सर कॉमेडियन? यस, द पीपल हु गो फॉर ऑथेंटिक कॉमेडी. आई डोंट वांट कचरा कॉमेडी. जो गाली गलौज करके कॉमेडी देते हैं, दैट इज नॉट कॉमेडी, दैट इज कचरा कॉमेडी. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिक पीपल हु कैन कम्युनिकेट विद द ऑडियंस. वो आपको 1 मिनट में 5 बार हंसाता है. यस और नो? सर आप कोई कॉमेडियन को सुनते हैं, 1 मिनट में आपको 5 बार हंसाता है. सर क्या आप किसी को 1 मिनट में 2 बार हंसा सकते हैं? नॉट पॉसिबल. Sir, try to understand. This is again a secret recipe of what I have learned. I am sharing with you. Start listening to comedian, and comedian with authentic comedian. कचरा का सुनेगा ना रील वाला, then your life is कचरा. Input will decide your output. Yes or no? Mind your input. तो सबसे पहले किसको सुनने का है? कॉमेडियन को. कौन सा कॉमेडियन? ऑथेंटिक. अब आप पूछेंगे सर ऑथेंटिक कॉमेडियन कौन है? I'll give you an example. अमित टंडन. Write it down. AMITTANDON. थोड़ा मेरे को भी सुन लेना, मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, अलग बात है, ठीक है ना. द फर्स्ट इज अमित टंडन, AMITTANDON. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, यू कैन फाइंड मोर. क्योंकि उसकी कॉमेडी में ना बहुत ऑथेंटिसिटी है. छोटा बंदा जो कहता है ना नीट एंड क्लीन, यू कैन शेयर विथ योर फादर. जो जोक्स अपने पिताजी के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑथेंटिक कॉमेडी. जस्ट रिमेंबर दिस. आप बोलेंगे ना सर हाउ डू आई फाइंड वेदर इट ऑथेंटिक इज और नॉट. अगर वो जोक्स आपके पापा के साथ में आप शेयर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ऑथेंटिक, दैट इज कचरा. व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको सुनना कैसे, तरीका बताता हूँ. सर ये सुनने का तरीका भी बहुत जन प्रॉब्लम फेस करते हैं. आई गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल. सर सपोज यू हैव फाउंड अ वीडियो ऑफ अमित टंडन. अभी लंच ब्रेक हुआ, एग्जांपल देते हैं, लंच ब्रेक हुआ 1 घंटे का. आपका 1 घंटा, आधा घंटे में लंच खत्म हो गया, आधे घंटे का ब्रेक है. जब आप उसको ऑनलाइन सुनेंगे ना, दैट जोमेटो ऐप विल कम. आपका कोई मैसेज भी आ जाएगा, कहीं कॉल भी आ जाएगा, मीटिंग का आ जाएगा, कोई रिव्यू, यस और नो, कोई क्वेश्चन पेपर, एनीथिंग. ऐसा तरीका नहीं होता है सुनने का. Whenever you want to watch a particular video, पहले उसको डाउनलोड कर लो.
अगेन आई एम गिविंग द सीक्रेट। पहले क्या करने का है उसको, पहले क्या करने का है, डाउनलोड करने का है। उसके बाद क्या करने का है, उसको चेयर पे बैठ के सुनने का है। सोफा में बैठ के और गद्दा में सो के सुनने से वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वन वीडियो लिसन 3 टाइम्स। कितनी बार सुनना है, कितनी बार सुनना है, 3 टाइम्स। वन वीडियो फॉर 3 टाइम्स। पहली बार सुनना है, दूसरी बार समझना है, तीसरी बार लिखना है। तीसरी बार क्या करने का है, लिखना है। अनटिल अनलेस यू राइट इट डाउन आपको वैल्यू एडिशन नहीं होगा। आपने बहुत सारा स्टोरी, एग्जाम्पल, मोटिवेशनल टॉक सुना तो है, लेकिन याद नहीं आता टाइम पे। ये सो नो, आपने भी तो सुना होगा ना, यू पीपल आर देयर ऑन स्मार्टफोन, यू लिसन टू लॉट्स ऑफ स्टोरी। आपके माइंड में यहाँ पर खड़े होकर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने लिखा नहीं है। लर्निंग हैज 3 फेजेस, सुनना है, समझना है, लास्ट इज व्हाट, लिखना है। अगर आपने सिर्फ सुना है दैट इज 33% डन, रेस्ट 33% इज सेकेंड राउंड इज समझना। आप तो 1 घंटे का सुनोगे ना, यू विल फाइंड 5 लाइन्स दैट इज वर्थ राइटिंग इट डाउन, क्योंकि आधे घंटे में एवरीथिंग विल नॉट बी रेलिवेंट टू यू। यू विल ओनली फाइंड देयर आर स्मॉल पंचेस, स्मॉल टैग लाइन्स व्हिच इज रेलिवेंट टू योर टॉक। तो पहला क्या करने का है, सुनना है, दूसरा समझना है, तीसरा लिखना है। इट्स माई रिक्वेस्ट, 6 महीने बाद इफ़ यू आर इन टच विद मी, गिव मी ए कॉल। आपकी लाइफ के साथ क्या हुआ है, यू बिकम मोर मैच्योर, यू बिकम मोर स्मार्टर। आपके बात में एक ग्रेविटी आती है, वजन। बात में वजन होगा तो लोग सुनेंगे, बात में वजन नहीं होगा, डजंट मैटर वेदर यू आर टेलिंग ए स्टोरी। मैं बोलूँगा स्टोरी, देयर वाज अ किंग हु वाज इन पैलेस एंड ही यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ये भी तो स्टोरी टेलिंग ही है ना। बोला सर, आप बोले सर सुना किसको रह के, ये सो नो व्हाट आई एम सेइंग इज तरीका। आई विल टेल यू द तरीका पार्ट सेकंड। पहले सुन लेते हैं, जब स्टोरी रहेगा तभी तो बोलेंगे ना। स्टोरी नहीं है, बोलेंगे क्या? यस और नो? व्हेन देयर इज नो स्टोरी विद अस, हाउ डू आई टेल स्टोरी? आप बोले सर सेशन में स्टोरी टेलिंग करो, मेरे पास स्टोरी नहीं है। ऑडियंस इज सेइंग कि सर स्टेशन का टाइटल है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, वेयर इज द स्टोरी? दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट। ये सर ने बोला ना, फाउंड सीता आई, आई एम गेटिंग इनटू द उल्टा पार्ट। पहले आप स्टोरी तो निकालो, उसको ऑडियंस को स्टोरी तो बताओ कि तू स्टोरी कहाँ से लाएगा, बाद में तो बोलेगा ना। सो व्हेन वी डोंट हैव अ स्टोरी, हाउ डू आई टेल अ स्टोरी? यस और नो? तो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? द फर्स्ट पार्ट इज जे। जे स्टैंड फॉर जोक्स। कॉमेडियन को सीरियसली सुनना है, कॉमेडियन को सीरियसली सुनना है। एंड दे कैन गिव यू समथिंग डिफरेंट। When I do a 8-hour workshop, I don't use PowerPoint. मेरे 8 घंटे का जो फुल डे वर्कशॉप होता है, without any paper and PowerPoint, continuous talk, and that is the reason why people are ready to pay 5 lakhs for a 1-day session also. वो इसलिए देते हैं, वो कहता है कि बंदा 8 घंटे बोलता कैसे है। Yes or no? This is what I have done. अब आप बोलोगे सर आप सबको सिखा दोगे तो आप सब तो चैंपियन बन जाएंगे। प्रॉब्लम इंडिया में ये है, हम सिखाने के बाद भी 95% करेंगे नहीं। The problem with all this is 95% people don't do this. Even though they learn this secret, they don't have that patience, they don't have that mindset, and they don't have the discipline to apply the same. You don't need to invent anything. Sir, India में, world में invention का जरूरत ही नहीं है अभी. You need to know how to use the existing invention. That's the only thing you need to know, sir. आपको कुछ नया आविष्कार करने का जरूरत भी नहीं है। अगर जो आविष्कार हो गया है उसको यूज करना आता है ना, you will become a master. प्रॉब्लम इज हमको लगता है कि आविष्कार कैन कम सेकेंडरी। आर यू यूजिंग द एग्जिस्टिंग? सर आपके पास स्मार्टफोन है और एवरीवन स्मार्टफोन, यस और नो? उसमें 3 प्यारे ऐप हैं। कौन सा ऐप है हमारे पास? व्हाट्सएप, फेसबुक, सस्ताग्राम, यस और नो? ओके, इंस्टाग्राम। और हम लोग सिर्फ फेसबुक में माथा टेकते हैं। आप लोग सब 8 से 10 बार माथा टेकते हो ना फेसबुक में। एक बार चेक कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा कुछ तो कोई नहीं है। अभी वही तो कर रहा है, एक बार चेक कर रहा है ना कि मेरे से ज़्यादा कुछ तो कोई नहीं है। अगर सर आपका कोई दोस्त ने अपने मैडम के साथ घूमने का फोटो डाल दिया, रात को मैडम क्या बोलेंगे रे? मैडम बोलेंगे हम कब जाएंगे? वी स्टार्टेड कंपेयरिंग, एंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, कैन वी यूज दिस स्मार्टफोन स्मार्टली? यूट्यूब कैन बी योर गेम चेंजर, बिकॉज यूट्यूब में आपको वो दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में वो दिखेगा जो लोग दिखाना चाहते हैं। दैट्स द डिफरेंस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इन फेसबुक यू विल गेट द कंटेंट व्हाट पीपल वांट टू पोर्ट्रे, बट इन यूट्यूब इट डिपेंड्स अपॉन योर सर्चेस। सर मे बी आई एम नॉट फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, डू आई हैव एक्सेस टू लेक्चर ऑफ आई एम अहमदाबाद? आंसर इज yes. There is a YouTube channel where they upload their lecture, yes or no?
I am not from IIT Kharagpur. Do we have access for that? Answer is I am not from MIT. Do we have access to lecture? Answer is yes. How many of you have subscribed to a MIT YouTube channel? 3, 4, 5 in the entire class. What I am saying is I am not saying कि गलत तो सही है. मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का ताकत है ना. If you are from the remotest corner of the country with the technology, you can get access to everything. प्रॉब्लम है नियत नहीं है, इंटेंट नहीं है. इंटेंट नहीं होगा ना तो हम क्या ब्रह्मांड में कोई भी आएगा कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो जे क्लियर है, कैसे सुनना है, प्रोसेस क्लियर. द सेकेंड पार्ट इज यू. यू स्टैंड फॉर अनहर्ड स्टोरीज. लिखो यू स्टैंड फॉर अनहर्ड स्टोरीज. अनहर्ड स्टोरीज मतलब ऐसा स्टोरी जो हमने कभी पहले कभी सुना ही नहीं है. अब आप बोलेंगे सर वो कहाँ मिलेगा. आपको टाइप करना है, क्या पता है? आपको टाइप करना है मोटिवेशनल स्पीकर इन हल्दिया. कभी इंटरनेट में सर्च किया है मोटिवेशनल स्पीकर इन हल्दिया? अपने मार्केट को डिस्काउंट करके क्यों बैठा है भाई? तुम जो 5 को सुन रहा है ना उसको तो सब सुन रहा है, और जिसको तुम सुन रहा है उसको अगर सब सुन रहा है तो तुमको कोई नहीं सुनेगा. आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर. सर आप अगर उनको सुन रहे हो जिसको सब सुन रहा है तो आपको कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल देंगे ना बोलेगा ये तो संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल दे रहा है. ये सो नो, बिकॉज उसको सब सुन रहे हैं. अनदर स्टोरी विल कम फ्रॉम लोकेशंस विच इज अनफैमिलियर. मोटिवेशनल स्पीकर इन जापान, मोटिवेशनल स्पीकर इन जिम्बाब्वे, अफ्रीका, कंबोडिया, नागालैंड. You search, you will find somebody who gives you some superb example and you become a rock star. This is what the foundation of unheard story is all about. एक बार क्या होता है ना, एक हस्बैंड को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है. क्या लगता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है. अब डायरेक्टली वाइफ को तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे तेरे को ऊंचा सुनाई देता है, उसको घर पे भी रहने का है. ये सुन लो. तो अपने डॉक्टर, आप लोग हंसो मत, आप लोग सब आप हमारा पीड़ा नहीं समझोगे. सुनो, अब वो अपने डॉक्टर दोस्त को क्या कहता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, गिव मी सम सॉल्यूशन. वो कहता है यू आर श्योर? बोलता 110% श्योर कि उसको ऊंचा सुनाई देता है. बोलता है एक काम करना, यू डू वन थिंग, एक काम करना, एक आप काम करना, आपको क्या करना है, आज एक बार जाके घर पे चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, क्योंकि आप मेरे को ये बता नहीं रहे हो कि कितना दूर से प्रॉब्लम आ रहा है. You reach your house today evening, you just find it out what is the problem exactly, what is the distance, so that I can guide you on the same. So on the same day evening we went to his house. The wife was there in the kitchen. मैडम काम करते हैं, किचन में खाना बना रहे थे, और ये बंदा है मेन गेट में, घर का जो मेन गेट है वहाँ खड़ा है. वो मेन गेट में खड़ा होकर बोलता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बनाए. वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है. उसे पता चल गया कि यहाँ तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है. फिर वो बंदा क्या किया, ड्राइंग रूम में चला गया. ड्राइंग रूम में जाके क्या कहता है, जानू मैं आ गया, खाने में क्या बनाए. फिर भी रिप्लाई नहीं आता है. फिर वो किचन के गेट के पास गया, बोलता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बनाए. फिर भी रिप्लाई नहीं आता है. वो उसके कान के पास जाके खड़ा होता है और कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बनाए. तो वाइफ कहती है 4 बार से तो बोल चुकी हूँ कढ़ी चावल बनाए. सर वाइफ को ऊंचा नहीं सुनाई देता था, इसको कम सुनाई देता था. ये सुनो सर, आपने कभी पहले स्टोरी सुना था? एनीवन? नहीं सुना था ना. दिस इज व्हाट आई कॉल अनहर्ड स्टोरीज. इंटरेस्टिंग, समझ में आया? जब आप बोलेंगे लोग हंसेंगे, जब लोग हंसेंगे यू बिकम अ ब्रांड. ये सब नो, जिसको अच्छा लगा मेरा जीपे नंबर दे रहा है, ट्रांसफर जो करना है ये सब ओके वंडरफुल. यानी हमें ये पता चल गया कि दिस इज व्हाट द फाउंडेशन इज. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. देयर आर 1800 such stories which I have accumulated, and that is my bread and butter. And experience will come with bad decision, and experience will come from bad decision. Yes or no? तो पहले गुड डिसीजन लाइफ में होएगा ही नहीं. पहले क्या होगा, बैड डिसीजंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, इधर उधर गिरेगा गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, फिर तुम आगे बढ़ जाएगा. ये सुनो, बच्चा आगे दौड़ता है कि ऐसे टलता चलता है ना, टक टक करके, उसके बाद चलता है ना. दैट इज व्हाट द कैलकुलेशन इज. व्हाट आई एम सेइंग इज अनहर्ड स्टोरी का सोर्स क्या है पता चल गया. कभी कभी आई रिकमेंड पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम पाकिस्तान. अब आप बोलेंगे सर पाकिस्तान का बात कर रहे हो यहाँ पर. मैं कह रहा हूँ
if the motivation can be used for some negative purpose, wherein people are ready to kill their life, we have to apply for some positive reason, yes or no? So can we apply that negative reason wala motivation for something positive and we can do something different, yes or no? What I am saying is sir, हर चीज में एक अच्छाई होती है. Can we have that positivity? कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. ये जो बचपन से खोना पड़ता है चल रहा है ना, दिक्कत यहीं पर है. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. आपने कोटेशन मैंने बताया था ना आपको, जो बुरी नज़र वाले, कल भी मैंने बात किया था ना. हैव आई सेड दिस कोटेशन? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये आपने कहाँ देखा है? ट्रक के पीछे, ये सुन लो. आपने कभी मर्सिडीज के पीछे देखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला? नहीं देखा है. आप बाइक में जा रहे हो, सामने में ट्रक जा रहा है, मर्सिडीज जा रहा है, नज़र किसको लगाओगे? लीक कौन रहा है? और जूता किस पे लटका हुआ रहता है? और जूता ज़्यादा पड़ता है किसको? यस और नो? इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. खेला बोलते हैं ना, खेला हबो. कुछ भी नहीं है सर. हम जे तुम्हार तुम्हें जे हमारी है, और कुछ भी नहीं है. मैं व्हाट आई एम सेइंग इज, it is very important for us to understand is in the world of communication and storytelling, you have to have that authenticity. You have to be a good human being. अगर आप अच्छे इंसान भी नहीं हो ना, आपका स्टोरी लोगों से जुड़ेगा नहीं. आपका बॉडी में आपको जो सेकंड पार्ट बात करेंगे उसमें बात करेंगे हाउ डू वी लिंक विद दैट. यू इज क्लियर? कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? यस. एस स्टैंड फॉर शेरो शायरी. अब आप बोलेंगे सर आप हमको टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं कि शायर बना रहे हैं. आई एम गिविंग यू अ फ्लेवर what is required. शेरो शायरी. शेरो शायरी बहुत अच्छे इंस्टाग्राम के रील आते हैं, देखा होगा आपने. और जो यूथ देखते हैं वो कचरा रील, तुमसे मोहब्बत था इस टूट गया दरवाजा फट गया, ये सब नहीं सुनने का. ये सब नो, ये सब काम नहीं आएगा. दैट शेरो शायरी विल हैज टू बी ऑथेंटिक. दैट शेरो शायरी हैज टू बी ऑथेंटिक, समथिंग वेरी क्लासी. ये किसी ने कहा है कि जब तक सड़क गाँव तक पहुँची तब तक सारा गाँव शहर पहुँच चुका था. जब तक सड़क गांव में पहुंची सारा गांव शहर पहुंच चुका था. पावरफुल लाइन. पीपल आर माइग्रेटिंग. कैन वी यूज दिस कोटेशन बिफोर वी स्टार्ट ए टॉक ऑन व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग? व्हाई देयर इज नो स्किल डेवलपमेंट हैपनिंग एट दिस लेवल? बिकॉज पीपल आर माइग्रेटेड टू द सिटीज. यस और नो? बट व्हेन यू स्टार्ट विद दिस पंच दैट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट. जो बोलते हैं प्रभाव, उसको क्या कहते हैं? प्रभाव. तो शेरो शायरी में आपको सुनना है विच कैन गिव यू अ गुड वन लाइनर. विच कैन गिव यू अ गुड one liner. And दूसरा is spiritual talks. Spirituality is one thing which people get connected very easily. हमें सच बोलना चाहिए. आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे इसको लेके? ये तो स्टैंडर्ड रूल है ना. भूख लगेगा तो खाना खाना चाहिए. Will you argue on this? अब नहीं से खाना नहीं खाना चाहिए. That means there are certain things which is very clear. तो when you listen to spirituality, when you talk to a diverse audience, because आप जब इन्वेस्टर को खोजोगे, एक आदमी रहेगा 70 साल के 60 साल के, देखो ऑल्सो बी एन इन्वेस्टर. दैट 60 years old guy, उसको पैसा एक्साइट नहीं करेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल इन्वेस्ट बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट. वेदर दे विल गेट रिटर्न और नॉट, दैट इज सेकेंडरी फॉर देम. यू विल गेट सच काइंड ऑफ केसेस. वहाँ पर वो बंदे को स्पिरिचुअलिटी विल बी द मोर कनेक्टिंग पार्ट. आई डोंट नो व्हाई, बट मैक्सिमम इन्वेस्टर whom I am catering, sir, they are not looking at my knowledge, they are looking at what kind of human I am. I use the word life worth. सर मैं कहता हूँ सर नेट वर्थ कम होगा तो चल जाएगा, लाइफ वर्थ नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा. येस और नो? राकेश झुनझुनवाला वाज एन एग्जाम्पल. यू माइट हैव सीन द पेपर. इतना पैसा वाला आदमी इज नो मोर, हेल्थ का फिटनेस का काम नहीं दिया. यू हैव टू कोट सच एग्जाम्पल टू हिम. तो बोलेगा यस ये बंदा सही बोल रहा है. You have to be physically fit, you have to be mentally alert, socially connected, spiritually sound and socially accepted. That is what the formula of life is. What I am saying is, आपको ये जो spiritual talk ना, it will make you a better human being. That is first. And second is, आपके बात में वो clarity आ जाएगा. बात में clarity आ जाएगा, आपकी आँख में चमक रहेगा, body clean रहेगा, and you will become कि कुछ बड़ा करना है, and you become a great storyteller. I have just given you a ब्रह्मास्त्र. No one is going to share the secret with you. वो करता क्या है? मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपको देगा ना तो मैं छोटा नहीं बन जाएगा. मैं जितना आपको हेल्प करेगा, मैंने कल बताया था ना, हाउ डू यू अचीव ग्रेटनेस बाय सर्विंग पीपल. यस और नो? हाउ डू यू अचीव ग्रेटनेस बाय सर्विंग पीपल. दूसरे का भला किया बिना तुम्हारा भला नहीं हो सकता. तुम्हारा भला नहीं हो सकता. यस और नो? आफ्टर दैट स्पिरिचुअलिटी एंड शेरो शायरी इज क्लियर. लास्ट इज टी. टी स्टैंड फॉर थॉटफुल लीडर. टी स्टैंड फॉर थॉटफुल लीडर्स. Listen to Swami Vivekananda some videos. Listen to Chanakya. Listen to Jim Rohn. I'm just giving you an example.
आप जब थॉटफुल लोगों को सुनते हैं ना, दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग सर। उनका 1 घंटे का टॉक इज़ वर्थ 25 लाख रुपीज़। सर शायद आप में भी बहुत सारे सेमिनार होते होंगे सर यहाँ पर। आई एम श्योर दैट कि दिस सच अ बिग इंस्टीट्यूट, आप लोग भी बहुत सारे स्पीकर और बुलाते होंगे। जस्ट देयर विल बी सम स्पीकर ना जो यहाँ पर टच करेगा, ये सो नो इन अ कॉन्क्लेव वेयर देयर आर 10 स्पीकर्स, 2 स्पीकर यहाँ छुएगा, बाकी हम बात नहीं करें, लेकिन 2 स्पीकर जो आपको दिए यहाँ पर छुएगा। सर द पीपल हु आर थॉटफुल दे कैन गिव यू अ ग्रेट क्लैरिटी, विजन देगा लाइफ में। अभी क्या हुआ, आई वॉज देयर, आई कम फ्रॉम अ जैन मारवाड़ी फैमिली सर, तो आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ टॉक टू एड्रेस माई कम्युनिटी। तो एक बंदा मेरे को बोलता है, ही वॉज अ यूथ, वो मेरे को क्या बोलता है, सर आप लोग तो सब लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है। हमने तो सबको बोला है ना कि भगवान हर जगह है, आप में है सर, मुझ में है, सब में है भगवान, इस कैमरा में भी भगवान है, पेन में भी, सब में भगवान है। तो सर अगर भगवान हर जगह है तो हमें मंदिर जाने का ज़रूरत क्यों है? दैट वॉज द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, क्योंकि आई हैव बीन लिसनिंग टू लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल गुरु। तो मैंने उसको बोला कि योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट एंड आई ऑल्सो एग्री विथ यू कि यस भगवान तो हर जगह है। मैंने उसको पूछा तेरा गर्लफ्रेंड है? वो कहता है सर। मैंने गर्लफ्रेंड दिल में है ना, तो गार्डन में क्यों जाता है? वही है, अगर तुम्हारा मन में भगवान होगा तो तुम मंदिर जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, कैन वी हैव अ स्मार्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग? उसका एग्जाम्पल लेकर हमने कोट किया ना, समझ में आया कि नहीं सर ये तो मेरा बात बोल रहा है। तो गर्लफ्रेंड तुम्हारा दिल में है तो तुम मूवी क्यों जाता है, गार्डन क्यों जाता है? तुम दिल पे रखो ना उसको। व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हेन वी हैव अ ग्रेट रिप्लाई टू अ ग्रेट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल मेक यू अ ग्रेट स्टोरी टेलर। मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया कि नहीं भगवान तो ऐसा होता है, दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर, ये सबको कहानी लगेगा। अगर मैं बोलेगा ना ये तो होता है, कल्चर का पार्ट है, ये सब कोई सुनेगा नहीं। यूथ, आज का यूथ और आज के लिए लोग कह रहे हैं, दे विल आस्क क्वेश्चन, कैन डू यू हैव अ स्टोरी ब्रह्मास्त्र टू डिफ्यूज? अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, जो महाभारत में क्या होता था, एक धनुष निकलता था, दूसरा आता था, देखा होगा ना आपने, ऐसे हुश करके निकलता था। आपका धनुष कितना स्ट्रॉन्ग है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका धनुष कद्दू होगा तो कुछ नहीं होगा। ये सो नो, yes or no? What I am saying is, most of the people land up in Kaddu and they are trapped into KKT SMB. KKT SMB is कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। That is what KKT SMB is. What I am saying is, people are not interested in your kaddu. People are interested where you can you talk like Daddu. Can you talk like Daddu is Dadaji and Dadaji was known for storytelling. Yes or no? So we have to become what? Kaddu की Daddu. अभी शादी तो करो, उसके दादाजी बनेगा, ये बोलते दद्दू बनेगा। ये सुनो, व्हाट आई एम सेइंग इज, कैन वी गेट इनटू दैट स्पेस? थॉटफुल लीडर्स एज अ स्टूडेंट, ये आपका, मैं बोलते ना, ये आपका धर्म है। 1 घंटा, आई नो दैट यू हैव एग्जाम, पेपर, वाइवा, ये वो है ना देना, सब चलेगा। अगर आप 1 घंटे ये नहीं कर रहे हैं तो फिर डोंट ड्रीम ऑफ एंट्रिंग इनटू दिस सेगमेंट। फिर जैसा चल रहा है चलने दो, फिर वी विल नॉट इंस्पायर यू। मेरे को मोटिवेट करने का ज़रूरत भी नहीं है आपको। प्रोसेस तो यही है। 1 घंटा आपको दिन में 1 घंटे का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको ये है जो कहता है नहीं सर टाइम नहीं मिल रहा है। एनीवन हु इज सेइंग कि सर 1 घंटे का टाइम नहीं है, आपको है 1 घंटे का टाइम? आपको है, आपको है मैडम, आपको है एवरीवन। सर आप मैडम, सर आपको भी 1 घंटे का तो टाइम होगा। 1 घंटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल डे। प्लीज़ ये 1 घंटे स्किल पे काम कीजिए। 1 डे 1 स्पीकर सर, सो दैट यू डोंट स्क्रॉल योर व्हाट्सएप एंड मोबाइल फोन्स एंड अनवांटेड, जो कि मेरे को वैल्यू एडिशन देगा ही नहीं। If I can communicate in this way, after 6 months, the student will become a fan of mine. Already वो आपके fan हैं। What I am saying is, can we become a better? Sir, आपको भी तो invitation आता है ना as a guest. You might be also receiving call to be invited as a guest. आप भी सर अच्छा बात करते हैं, अगर हम और इसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो we will become more popular among the participant. वो बोलेगा कि नहीं ये सर जो के बात है ना, मज़ा आता है, समझाते हैं। अदरवाइज बात करना, लोग सो जाते हैं। अगर मैं प्रवचन देगा ऐसा, लोग 15 मिनट में सो जाएंगे। ये सब नो, मेरे को एज ए स्पीकर मजबूर करना है आपको जागते रहने में। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर कैपेसिटी। ये सब नो, अगर आपका सेशन में लोग सो जा रहे हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द ऑडियंस, द प्रॉब्लम इज विद द स्पीकर। ये वाला स्पीकर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला स्पीकर। ये सब नो। तो हमने जस्ट का फॉर्मूला क्लियर हो गया, JUST। कैन वी डू इट? Is it easy? Is it easy? Yes. Are we able to relate with it? J stand for? U stand for? S stand for? And Sero? And Sero Sairi. T stand for? Thoughtful
लीडर, सर देयर इज अ लीडर कॉल्ड जिम रॉन, उसको सुनो अच्छा लगेगा आपको, जिम रॉन, JIMRON। वो क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू वन ऑफ द टू पेन्स, वन इज पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। सुबह 5 बजे उठना पेनफुल है, ये सोच लो, सुबह 5 बजे उठना पेनफुल है, लेकिन तुम अगर उठेगा 5 बजे तो क्या होगा, तुम्हारा बॉडी फिट रहेगा, तुम्हारा बॉडी फिट रहेगा। और अगर तुम 5 बजे नहीं उठ के 8 बजे उठेगा, उसको कहते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। उसके बाद बोलेगा मेरा बॉडी शेप में नहीं है। तो यू हैव टू चूज विच पेन यू वांट सर, वेदर यू वांट पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू वांट पेन ऑफ रिग्रेट। इफ वी स्टार्ट शेयरिंग आवर थॉट विद दिस अप्रोच कि देख भाई तू नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को मैं किसको कन्विंस नहीं करता कि तो अच्छा से पढ़, मैं कहता नहीं पढ़ेगा तो 2 चीज़ है, पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। जो नहीं पढ़ता उसका भी लाइफ चलता है और जो पढ़ता है उसका भी लाइफ चलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो नहीं पढ़ेगा वो लाइफ में थोड़ा सा उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो पढ़ेगा स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेहनत एंड मजदूरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेहनत एंड मजदूरी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपका कॉलेज में एक लड़का है जो कॉलेज में सुबह पढ़ाई करता है और सामने में कंस्ट्रक्शन साइट में पत्थर उठाता है, बिकॉज फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फीस देने के लिए वो सर फील्डिंग में जाके पत्थर उठाता है। उसको आप क्या बोलेंगे, बच्चा मेहनत कर रहा है कि मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये सो नो। एंड वही लड़का कॉलेज के 5 साल बाद उसी कंस्ट्रक्शन साइट में पत्थर उठा रहा है, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मजदूरी कर रहा है, ये सो नो। मेहनत और मजदूरी में डिफरेंस पता चला मेहनत और मजदूरी में डिफरेंस। सही समय पे सही काम करने को कहते हैं मेहनत, और गलत समय में सही काम करने को कहते हैं मजदूरी, ये सो नो। गलत समय पे सही काम करने को कहते हैं मजदूरी सर। वो कंस्ट्रक्शन साइट में 8 घंटा काम करना इज वेरी पेनफुल, दैट्स ऑल्सो गुड वर्क, बट प्रॉब्लम इज बिकम्स मजदूरी। और इंसान इंडिया में मेहनत क्यों नहीं करता है पता है, क्यों बताओ? इंसान इंडिया में मेहनत इसलिए नहीं करता है क्योंकि मेहनत करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वो मेहनत नहीं करता है। इंडियन आर्मी का सोल्जर बनने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगा कि आपको एक वॉचमैन बनने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगा, ये सो नो। और सपोज एक इंडियन आर्मी का सोल्जर घर पे छुट्टी में आया है और सुबह 9 बजे तक सो रहा है और उसके फादर उसको उठा रहे, उठ, मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी, सोने दो। और ATM का गार्ड सुबह 10 बजे तक सो रहा है, उसकी माँ क्या बोलेगी, पानी डाल इसके ऊपर, ये सो नो। यानी समझ में आ गया कि जो आदमी मेहनत करता है ज़िंदगी के मज़े वही लेता है। सर कलेक्टर बनने में ज़्यादा मेहनत है कि प्यून बनने में ज़्यादा मेहनत है? कलेक्टर, और मज़े भी ज़्यादा कलेक्टर लेता है। द काइंड ऑफ बंगलो हाउस, द काइंड ऑफ प्रोविजन दैट अ कलेक्टर विल हैव, द प्यून विल नॉट हैव। हमको लगता है कि प्यून काम करता है, सर काम करना इज़ नॉट अ लग्जरी, काम करना इज़ नॉट अ लग्जरी एट ऑल। डू यू थिंक सर काम करने से लग्जरी, दैट बेवकूफ़ी। लाइफ का मज़ा भी वही लेता है जो आदमी क्या करता है, मेहनत करता है, ये सो नो। अदरवाइज लाइफ विल बिकम मजदूरी। सो दिस इज हाउ वी रिलेट विद मेहनत एंड मजदूरी, जैसा अगेन पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये सो नो। अगर मेरे को किसको समझाना है स्टूडेंट को, मैं ऐसे बोलेगा आपको उठना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत, वो नहीं समझेगा। आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल एंड आई एम रिलेटेड विद दी मेहनत और मजदूरी में क्या डिफरेंस है, तब उसका यहाँ पर हिट होगा, यार सही बोल रहे हैं सर। अभी अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो ATM कार्ड वाला हाल हो जाएगा, ये सो नो। What I am saying is, if there is a good example to connect with what you want to share, people will remember you forever. 80 साल बाद जब आप 80 साल के हो जाएंगे वो बोलेंगे एक धनंजय सर आए थे चले गए लेकिन अच्छा स्टोरी सुनाता था, yes or no? And this is what आज हम बात करते हैं विवेकानंद जी की, हम बात करते हैं महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, नेम देम, अभी भी वो जिंदा है। The purpose of life is you should be alive after you are dead. दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। अगर आप मरने के बाद जिंदा नहीं हो देन आपने लाइफ को जिया ही नहीं है सर, यू हैव बिकम अ डेड स्टोरी, देन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि आर पीपल यूजिंग योर कोट, आर पीपल यूजिंग योर एग्जाम्पल, आर पीपल रिमेंबरिंग यू फॉर थॉट, दैट इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। माई पॉइंट ओवर हियर इज सर स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड टिल माई ग्रेजुएशन। सर मेरा ग्रेजुएशन तक मेरे को लाइफ में एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी नहीं मिला था, मतलब आई वॉज सच अ डल स्टूडेंट, डल इन द सेंस मेरे को ना स्टेज एक्टिविटी इसको मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को तो ये बकवास है, टाइम पास है। ऑन माई फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई MBA,
जब मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहा था मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, टोटली ब्लैंक, क्योंकि अंदर में इनपुट गया ही नहीं है। स्टेज पे खड़ा कर दोगे तो डब्बा हो जाएगा ना। ये सब सर जो बोरी होता है, पता है बोरी जिसमें आलू रखते हैं, बोरी बोलते हैं ना सर, व्हाट डू वी कॉल बोरी, राइट? अगर वो बोरी को आप ऐसे खाली रख दोगे यहाँ खड़ा होके, क्या होगा? क्या वो खड़ा रहेगा क्या? अगर उसमें आलू डालोगे तो क्या होगा? बस वही है। अभी आप लोग जो बोलते हो ना कि सर मेरे को स्टेज प्रेजेंटेशन है, डर लगता है, मैं बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका बोरी खाली है। उसमें क्या डालने का है? उसमें क्या डालने का है? स्टोरी। आलू नहीं डालना है सर, तुम्हें आलू डालने का है। उसमें क्या डालने का है? उसमें डालने का है स्टोरी, उसमें डालने का है स्टोरी, उसमें डालने का है जोक्स, उसमें डालने का है शेरो शायरी, उसमें डालने का है स्पिरिचुअल टॉक, उसमें डालने का है थॉटफुल लीडर्स। इसमें बन जाएगा आपका पनीर बटर मसाला। यस और नो? तब आएगा टेस्ट। खाली पनीर में टेस्ट होगा? खाली पनीर खाओगे तो टेस्ट होगा? नो, टेस्ट होगा पनीर बटर मसाला में। अभी हम पनीर तो दे रहे हैं लेकिन हमारा में मसाला नहीं है। आप समोसा किसके पास खाते हो? जो चटनी देता है, जो चटनी नहीं देता है? चटनी देता है। बस आपको चटनी देना है। हमारे साथ दिक्कत है, हमारा स्टोरी में चटनी नहीं है। जिसका चटनी नहीं है, लोगों को टेस्ट नहीं लगेगा, वो बोलेगा इवन दो योर समोसा इज गुड, योर नॉलेज इज गुड, बट वेयर इज द चटनी? वन ऑफ माई प्रेजेंटेशन टाइटल इज वेयर इज द चटनी। द टाइटल इज वेयर इज द चटनी। द वन ऑफ द टाइटल ऑफ माई सेशन इज भरे हुए को भरती है दुनिया बादाम। वन ऑफ द टाइटल इज कि आप जिंदगी के जमाई हो। वन ऑफ द टाइटल इज तेरा तुझको अर्पण। What I am saying is this all things connect with people. मैंने आपको कल बताया था ना इम्पोर्टेंस ऑफ नेम। सचिन तेंदुलकर का क्या नाम होने से समझ में नहीं आता? वैसे ये देखो सबको याद हो गया। ये सब ना काम की चीज़ है, फॉर्मूला पूछो याद नहीं। What I am saying is the reason why you are able to remember this ना, वो तरीका बोला गया था। अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसको। और इसके बाद तुम जब 20 साल के और मतलब तुम भी थोड़ा बूढ़े होने लगोगे, तुम पे बुलाया जाएगा स्पीकर, तुम भी ऐसे बोलोगे। सब बोलेंगे यार क्या बात बोला है सर ने, और मेरे को थोड़ा क्रेडिट दे देना कि सर ने सिखाया था। ये सब नो, यानी हमको समझ में आ गया कि दिस इज हाउ द फाउंडेशन इज क्लियर। लिसनिंग स्किल इज क्लियर, कैसे सुनना है तरीका बता दिया। लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट था लिसनिंग, सेकंड इज सोइंग। सोइंग मतलब सोइंग इज योर बॉडी लैंग्वेज, सोइंग इज योर कपड़ा, सोइंग इज योर हेयर स्टाइल, सोइंग इज योर फेशियल एक्सप्रेशन, showing is your hand movement, and showing is the kind of what you say, the kind of glow or the energy they can see in your face. उसको बोलते हैं SEE. S is smile, E is energy, E is excitement. SEE, that is the part of showing. Smile, energy and excitement. इस काम को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरे को अपने काम में मज़ा आता है सर। आई वर्क लाइक एनीथिंग, और मैं लाइफ को एंजॉय भी ऐसे करता है। मैंने सर को बोला कि कल सेशन के बाद में आई वेंट टू द रिवर फ्रंट। लाइफ को जीना भी है, काम भी करना है, और मज़े भी वही लेगा जो काम किया है सर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव स्ट्रेस फ्री इन योर लाइफ? स्ट्रेस फ्री एवरीवन, राइट? द ओनली वे टू लिव स्ट्रेस फ्री इन योर लाइफ इज बिकम एम्बिशनलेस। दैट्स द ओनली फॉर्मूला सर, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर जाना है, 3 दिन बिस्तर में से सो जाना है, आपका पूरा परिवार स्ट्रेस में आ जाएगा। इसको बोल दिया गया है। सो द ओनली वे टू रिमेन स्ट्रेस फ्री इज बिकम एम्बिशनलेस। अगर जिंदा है तो स्ट्रेस रहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो स्ट्रेस रहेगा, गोल है तो स्ट्रेस रहेगा। सर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना भी एक स्ट्रेस है। बी वेरी ऑनेस्ट सर, हमको यहाँ पर आके लेक्चर देना भी एक स्ट्रेस है। बट यू हैव टू बी पॉजिटिवली स्ट्रेस, यू हैव टू बी पॉजिटिवली स्ट्रेस। आप जिम पे जाते हो, डंबल उठाते हैं, डंबल उठाना स्ट्रेसफुल है कि नहीं है? यस और नो, इट इज हैविंग अ स्ट्रेस। गाना चल रहा है कर हर मैदान फतेह, तो डंबल उठाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अगर गाना चले जब दिल्ली टूट गया तो खुद नहीं उठेगा, डंबल तो बाद में है। यस और नो? द पीपल हु आर नेगेटिवली स्ट्रेस आर द पीपल हु आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। यू हैव टू बी व्हाट? यू हैव टू बी पॉजिटिवली स्ट्रेस। स्ट्रेस तो रहेगा, खाली एक ही जगह लोग आपको स्ट्रेस फ्री मिलेंगे, शमशान घाट में चेक कर लेना, वहाँ स्ट्रेस फ्री है। उसको छोड़ के अगर कोई आदमी स्ट्रेस फ्री है तो वो आदमी ज़्यादा दुखी है लाइफ में। अगर किसी को स्ट्रेस ही नहीं है, अगर किसी को बोला जाए स्टाफ को कि तेरा रिव्यू होएगा, बोला जो होगा देखा जाएगा, उसको आप स्ट्रेस में कैसे लेके आएंगे? जो आदमी बोल रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, उसको आप स्ट्रेस में ला सकते हैं क्या? जो आदमी सर स्टेटमेंट दे जो होगा देखा जाएगा, डू यू कैन यू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर अंडर स्ट्रेस? आपका एग्जाम में जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, कैंपस में होगा देखा जाएगा, क्या आदमी स्ट्रेस में नहीं आएगा कभी? Because we want to score best marks, we want to get into the best institution. Yes or no?
This is what is important. Showing is how confident you are, your body language, your hand posture, your smile, आपके बॉडी का स्टडीनेस. जब हम मूवमेंट करते हैं ना, देखो आप मेरा मूवमेंट देख रहे होगे, 1-2 स्टेप फिर आई कम बैक. अगर आप ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करेंगे ना, ऐसे टक टक करके, ऑडियंस का गर्दा में जो बोमन ईरानी वाला पिक्चर आ जाएगा. बोलेगा भाई इधर से उधर से करा रहा है. आपने मूवमेंट किया, आपका 3 स्टेप, ताक थे तक थे. क्या बोलने का है? ताक थे. जैसे मेंटली बोलने का है, मुंह में नहीं बोलना है. फिर वो बोलेगा ताक थे. जैसे ना 1 2 3 4. फिर जाके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम सबको कैप्चर करने का है. व्हेन आई एम गोइंग टू दिस पार्ट टक टक टक, जैसे मैं भी कैमरा मैन, ये कैमरा मैन मेरे को गाली दे रहा है, बोलते हैं बाकी स्पीकर खड़े होकर बात करता है, ये खाली घूमता है, मेरे को खड़ा होना पड़ता है. Yes or no? What I am saying is when you go to 1 2 3 4, I am connecting with everyone. When I again am back to 1 2 3 4, I am connecting with everyone, so that people should not feel they are left out. But it has to be very slow. फास्ट नहीं, एकदम स्लोली बोलते रहना है और बीच में एक बार रुक जाने का है. फिर से आस्ते आस्ते आने का, टक टक टक, फिर से रुक जाने का है. ज़्यादा फास्ट करेगा तो लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है. ज़्यादा गर्दन हिलाएंगे ना तो लोगों का ब्रेन स्टेबल नहीं रहेगा तो कैप्चर नहीं होगा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. देखो स्टोरी टेलिंग में माय नहीं है. दिस इज व्हाट इज तैयारी, फाउंडेशन. हमको सुनाया गया कि आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में सर बोलेंगे स्टोरी कैसे सुनाते हैं, आंसर इज नो. पहले स्टोरी सुनाना कैसे वो समझो, कैसे सुनाते हैं. आफ्टर दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन अप्लाई. इज मेकिंग सेंस? लिसनिंग के बाद क्या सीखा हमने? शोइंग. उसके बाद होता है स्पीकिंग, उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग. कंटेंट आ गया, यानी घर में पनीर आ गया, मसाला आ गया, कढ़ाई आ गया, सब कुछ आ गया, आपने सब कुछ कर लिया. ये सो लो. अब उसको आपने सोइंग में क्या हुआ, अच्छे से कांच के बाउल में, अच्छे से प्लेट में सर्व कर दिया. ये सो लो. अभी तक गेस्ट खाना नहीं खाया है, अभी तक गेस्ट खाना नहीं खाया है, राइट. अब आप समझो किसी को अपने घर पे खाने पे बुला रहे हैं. आप खड़े हुए इधर आइए खाने बुला रहे हैं. सपोज आप किसी को अपने घर पे खाने पे बुलाए, आप बेल बजाओ, टिंग टॉन्ग टिंग टॉन्ग, ठीक है सर खाना पे सर खाने पे बुलाया ना, इसको खाना खिलाओ. क्या वैसे करते हैं? नहीं करते हैं ना. यानी इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉक, डायरेक्टली जिस टॉपिक पे हमको बात करना है ना, उसको डायरेक्ट उस टॉपिक पे नहीं लेके आना है. इवन तो ही हैज कम फॉर डिनर, क्या हम उसको गेट से बाहर बोलते खाना खा लो. यस और नो? बेटर. अगर हमको बॉटल में पानी भरना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा. यस और नो? अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो आप क्या हैं? मैंने कुछ नहीं बोला है, आप ही बोल रहे हो. मैंने बोला जो नहीं खोलेगा वो क्या बन जाएगा? बस. हमको क्या नहीं बनने का है? ढक्कन. तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग टू योर थॉट प्रोसेस. स्टोरी टेलिंग इज नॉट द ओनली थिंग. हम आपको यहाँ पर प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं बनना है. हम सीख रहे हैं कि कैन वी हैव अ अप्रोच ऑफ शेयरिंग आवर प्रोडक्ट्स, शेयरिंग आवर आइडियाज एंड इनसाइट with the help of something which can be a complement to the thought process. That is what we are learning. So when the show starts, it has to be slow. पहले ढक्कन खोलने का, slowly ढक्कन खुलेगा, उसके बाद पानी अंदर जाएगा. स्टार्टिंग से कर लोगे तो नहीं होगा. So that is the reason why I always said yesterday, when you go for a great pitch, it has to start with a story, example, data, wow factor, or it has to be start with a humor or some sarcastic opinions. Yes or no? That is where it will create the tone. ऑडियंस बोलेगा क्या बोला, सुन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. ऐसे अगर स्टार्ट करोगे ना, वो बोलेगा इन्वेस्टर कौन है भाई, सुबह बोल रहा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. बोले मेरे को बोला नहीं सर, मैं से कोट बोल रहा है. व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेयर वी पुल द अटेंशन. सेकंड इज योर टोन. आपका बात करने का टोन कैसा है? खर 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 वो टोन वाले का मज़ा नहीं आएगा. योर टोन हैज़ टू बी स्मार्ट. तो आप बोलेंगे सर मेरा आवाज़ ऐसा ही है. ये सुन लो. अगर आपका आवाज़ ऐसा है, यू कैन वर्क ऑन योर टोन. आपका टोन आप ठीक कर सकते हो. देयर आर फ्यू एक्सरसाइज, यू आर देयर ऑन यूट्यूब. फॉलो सर्टेन एक्सरसाइज फ्रॉम अ सर्टिफाइड ट्रेनर. ही कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर टोन. अगर आपका वोकल कॉर्ड अच्छा है, बात कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट देयर आर ट्रेनिंग्स, इफ़ यू डू फॉर 3 months, आपका बात करने का टोन क्वालिटी अच्छा हो जाएगा. एक और तरीका है टोन को अच्छा करने का, स्टार्ट रनिंग. सुबह उठ कर दौड़िए. व्हेन द फैटनेस इन द बॉडी इज ऑलमोस्ट नॉट देयर, आपका टोन ज़्यादा अच्छा होता है. आपका ये वाला थोड़ा पार्ट पतला होगा ना, द टोन विल बिकम बेटर. नहीं तो फिर वो बेबी को बेस पसंद है ना, वैसा निकलेगा. यस और नो? व्हाट आई एम सेइंग इज डू एंश्योर दैट द टोन हैज़ टू बी गुड. फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर टोन क्वालिटी. सेकेंड इज बात करने का स्पीड.
बात करने का स्पीड पूछो अपने फ्रेंड से कि भाई मैं बात करता है तेरे को क्या लगता है, ज़्यादा स्पीड बोल रहा है कि स्लो बोल रहा है। आपको ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलने का और ज़्यादा स्पीड भी नहीं बोलने का। इफ़ यू आर वेरी फास्ट reduce the speed by 20% and if you are slow increase the speed by 20%. Don't increase more than that, otherwise लोग सुनते सोचेंगे क्या बोलेगा नेक्स्ट। मैं ऐसे बोलेगा मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है, बोले भाई बोल ये सुन। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हमको कुछ करना चाहिए और हम जब जाएंगे तो फिर हम वहाँ पहचानेंगे। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पता है और आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता, तो आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या पता है। क्या समझा? कुछ नहीं समझा। तो हम क्या बन गए? कद्दू। क्या बन गए? कद्दू नहीं बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? कद्दू। यस और नो? व्हाट आई एम सेइंग इज फास्ट भी नहीं बोलने का है, स्लो भी नहीं बोलने का। देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड स्पीच। टोन के साथ खेलने का है। टोन के साथ कभी कभी एक बीच में ना सा एक बड़ा सा टोन डाल देने का, ताकि क्या हो वापस अटेंशन जो है फिर आ जाएगा ऑडियंस का। बात करते रहोगे। लेकिन ये जो वर्ड होगा ना, लेकिन ये आ गया आपका हाई पिच। यहाँ पर फिर से पार्टिसिपेट आपको देखेंगे, फिर चलता रहेगा टक 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 टक। परंतु मगर ये जो है ना, मगर लेकिन ये सब दिस विल बिकम योर सेवियर सो दैट ऑडियंस इज अगेन बेकर। यानी यहाँ पंच बोलेगा ये सो नो। दिस इज अगेन वन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज। हाथ का मूवमेंट कैसा है? हाथ का मूवमेंट, बिकॉज आई एम होल्डिंग अ माइक। कभी कभी हम जब कॉर्डलेस माइक होता है तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, बट व्हेन आई यूज द एंटायर बॉडी विल कम इनटू पिक्चर। अभी अगर आप स्टेज पे आते हैं कैसे खड़े होने का, देखो स्टेज पे सब आते हैं ना, ऐसे कोई खड़ा होगा, कोई ऐसे खड़ा हो जाएगा, उसको फोटो खिंचाने बोलेंगे ऐसे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं हाथ कैसे रखे। ये सोच उसको लगता है यार मेरा स्पेयर पार्ट आ गया है। There's a problem. सर व्हेन यू आर ऑन स्टेज ना, देखो आप स्पीक कर रहे हैं, ऐसा रहेगा। जब भी आप कोई इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, दिस इज योर हैंड पोजीशन, पेट के सामने हाथ रहेगा। आपने समझाया कि सर वी हैव 2 years of experience, बैक, सर वी विल मल्टीप्लाई, बैक। घूम के डायरेक्ट में यहाँ पर हमारा लैंडिंग पोजीशन होगा। इट्स ऑल मेकिंग सेंस। सर वी हैव अ मेंबर ऑफ 3 people and we are working on it, back. And sir we have believe that this can work for us. And sir it is all about how we do reverse engineering. ये क्या है? ये रिवर्स। And how do we look forward? So मैं हाथ से हमने बता दिया कि रिवर्स कैसा हो रहा है और फॉरवर्ड कैसा है। It's a skill we have to learn. This is again called body language. जैसे आपके घर में मैडम कोई शादी में आपने किसको बुलाया है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, शादी में आप गेट पे खड़े रहते हो, कोई गेस्ट है उसको बोलते हैं इधर बैठ, और ऐसे बोलते हैं इधर बैठो। ये सब नो, दोनों को बैठने के लिए बोला। तरीका कैसा है? एक को ऐसे बिठाया, एक को बोला ऐसे बैठ। जिसको आप ऐसे बैठ बोलोगे वो शादी में नहीं आएगा, नहीं तो लिफाफा नहीं देगा आपको। ये सब What I am saying is again your body language is a very important role. जो हम बात करते हैं ना स्पीकिंग में टोन आएगा, बॉडी लैंग्वेज आएगा। उस बॉडी लैंग्वेज इज बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ शोइंग एंड स्पीकिंग। टोन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपका टोन अच्छा रहेगा, पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। ये बोलेगा ये बंदे में बात में दम है, अदरवाइज लोग सुनेंगे नहीं। क्योंकि आपका जो समय है ना, आपका सबसे बड़ा दौलत है। योर टाइम इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। जिसको भी दे रहे हो सोच के देना, दोबारा लौटता नहीं है। ये जो आपने मेरे को 1 घंटा दिया, क्या ये वापस ज़िंदगी में आएगा आपके पास? विल इट एवर कम बैक? यानी ये खर्च हो गया। आज मेरी अर्निंग कितनी हुई है? इफ देयर आर 200 people in this hall, my earning is 100 hours of attention. What is my earning? Payment will come secondary, but I have earned 100 hours of attention. As a teacher, when I am teaching to 100 students for 1 hour, that means you have taken 100 hours of human attention. That is again a part of your earning, sir. When we do the earning, it is not just because of the salary that we get. It is all about the kind of attention that we got. I can talk about money, sir. पैसा जो है ना, मैं डिस्कस करता है ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद। जब मैं ट्रेनिंग सेशन में होता है, मेरा इज्जत स्टेक पे होता है। ये सब या तो आप बाहर जाके बोलोगे या बकवास सेशन था, या बोलोगे अच्छा सेशन था। ये सब अच्छा लगेगा तो शायद आप मेरे को फिर से याद करेंगे, नहीं लगेगा तो फिर से याद नहीं करेंगे। Yes or no? So in order to become famous, popular, somebody, the students want to fall in love or investor want to fall in love with you, please do ensure that work on this dimension and you can become a fantastic storyteller. You know what is the process, what is the roadmap, how do we take it forward, and if we can plan it with clarity, I believe that you can become a fantastic gentleman. Yes or no? So thank you once again everyone. I hope the session has given you some clarity how you can become a better storyteller. Thank you so much.
So when it is imaginary, उसको IAS का I, that is ignore it. IAS का I is what? Ignore it. Second is realistic. सर मेरा हाइट 5 फुट 4 इंच है, क्या मैं चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है. सर मैं स्टैमर करता है बात करते समय, ट्राई किया नहीं हो रहा है, क्या मैं सॉल्व कर सकता? आंसर इज नो. व्हेन इट इज रियलिस्टिक, एक्सेप्ट इट. A स्टैंड फॉर एक्सेप्ट इट, दैट इज IAS वाला A. एंड S स्टैंड फॉर समस्या. सर मेरा पब्लिक कम्युनिकेशन इंग्लिश का अच्छा नहीं है, दैट इज अ समस्या. दैट IAS वाला S इज सॉल्व इट. तो व्हेन देयर इज अ समस्या, सॉल्व इट. व्हेन देयर इज अ इमेजिनरी, एक्सेप्ट, उसको इग्नोर इट. एंड व्हेन देयर इज अ रियलिटी, accept it, and that is what is the combination, and that is where you come out of the fear zone. I hope it is clear, sir. IRS and IS combination. Great. Thank you so much, sir.